آج ہم بات کریں گے 2026 جو ہے سب زوڈک سائنس کے لیے کیسا رہنے والا ہے، اور اس میں بات کروں گی آج پرٹیکولرلی اس ویڈیو میں ورگو کا 2026 کیسا رہے گا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی زندگی کے جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کروں، اور یہ ریڈنگ جو ہے وہ سن سائن بیسڈ ہوگی، مون سائن نہیں، لیکن کہیں کہیں مون سائن جو ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو ریزونیٹ کر پائیں گے۔ تو میں اس میں بات کروں گی کاسمک تھیم آف دا ایئر 2026 کی، پھر میں بات کروں گی میجر جو پلانٹس کی انرجی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس پہ کس طرح افیکٹ ڈالے گی، اور 2026 کی انرجی اور کی ورڈز کیا رہنے والے ہیں، اور آپ کے پاور منتھس اور ٹرننگ پوائنٹس کون سے رہیں گے، اور آپ کے ریلیشن شپ اور فیملی پہ اس کا کیا افیکٹ آئے گا، آپ کے فائنینسز، آپ کی ہیلتھ اور ویل بینگ کیا، آپ کی ایجوکیشن، لرننگ، ٹریول اینڈ ایڈونچرز، اور آپ کی اسپرچول اینڈ پرسنل گروتھ، آپ کے لکی کرسٹل، اور آخر میں بات کروں گی ایئرلی ایڈوائس کی۔ تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز میں کون سی چیز پسند آتی ہے اور کس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھنا چاہیں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نصرت عین وتھ سمیہ چشتی۔ ورگو 2026، سب سے پہلے بات کریں گے کاسمک تھیم آف دا ایئر کی ورگو۔ تو 2026 کی جو کاسمک ویوز ہیں ورگو، وہ آپ کے لیے ہیلنگ تھرو الائنمنٹ کا جو ہے وہ میسج لے کے آئی ہیں۔ یہ سال آپ کو سکھائے گا کہ زمین کی حقیقت، روح کی روشنی کے بیچ کہیں ہارمنی ہی آپ کی اصل کامیابی کا جو ہے وہ باعث بنیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پلانیٹری انرجیز جو ہے وہ کس طرح کام کریں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مرکری کی انرجی کو، جو کہ مائنڈ، کلیئرٹی اینڈ کمیونیکیشن کی انرجی ہے، اور مرکری کیونکہ آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، اور 2026 میں یہ آپ کے جو انالیٹیکل مائنڈ ہے اور مسئلے حل کرنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے وہ اس میں چار چاند لگائے گا۔ 2026 میں مرکری آپ کی بات چیت میں زیادہ اس کو مؤثر بنائے گا، زیادہ کلیئرٹی جو ہے اس میں لانے والا ہے، چاہے وہ ذاتی آپ کے ریلیشن شپ ہوں یا پروفیشنل آپ اپنے آپ کو جس طرح سے اپنے معاملات کو ڈیل کرتے ہوں۔ یہ آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ صاف سوچ، ایمانداری سے اظہار بھی خود کو ہیل کرنے اور امپاور کرنے کا طریقہ ہے۔ مرکری 2026 میں آپ کو سیکھنے، لکھنے اور ان خیالات سے جڑنے کی ترغیب دے گا جو آپ کی عملی حکمت کو اور ان میں بڑھاوا جو ہے، ان میں بوسٹ جو ہے وہ ایڈ کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں سیٹرن کی انرجی جو ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ تو سیٹرن کی انرجی جو ہے وہ ڈسپلن، ٹائم اینڈ پرپس جو ہے وہ لے کے آئی ہے آپ کے لیے۔ وہ آپ کو یاد دلائے گا سیٹرن کہ یہ وقت سب سے قیمتی دولت رہنے والی ہے۔ یہ آپ کو سکھائے گا کہ کامیابی صرف محنت نہیں بلکہ ڈسپلن اور صبر سے پیدا ہوتی ہے۔ 2026 میں آپ کے فیصلے زیادہ میچور اور پرپسفل ہونے والے ہیں۔ اب آپ جانیں گے کہ کس چیز کو میں نے ہاں کہنا ہے اور کس چیز کو میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیپچون کی انرجی، جو کہ انٹیوشن، سینسٹیوٹی اور ہیلنگ سے بھری ہوئی ہے۔ نیپچون آپ کے اندر کے ہیلر کو جگانے والا ہے۔ خواب، انٹیوشن اور دل کے اشارے، یہ سب آپ کے لیے ایک ڈیوائن جو ہے وہ گائیڈنس بنیں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ حقیقی سکون تب آتا ہے جب انسان اپنی روح کی آواز کو سننا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے زخموں کو اسپرچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہیل کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں جوپیٹر کی انرجی کیا کہتی ہے، جو کہ ایکسپینشن، لرننگ اور فیتھ کی انرجی ہے۔ تو جوپیٹر آپ کی زندگی میں نئے دروازے کھولے گا، سیکھنے، بڑھنے اور اپنی لمٹ سے آگے نکلنے کے۔ یہ سال آپ کے سیلف بلیف کو اور مضبوط کرے گا۔ ممکن ہے آپ کا ریلیشن کسی نئے علم یا روحانی پریکٹس یا ہیلنگ فیلڈ سے جڑ جائے۔ جوپیٹر آپ کو سکھائے گا کہ ایکسپینشن ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر سے نہیں۔ اس سال کی جو تھیم لائن رہنے والی ہے ورگو آپ کے لیے 2026 کی، تو یہ آپ کو سکھائے گا کہ ہیلنگ صرف میڈیٹیشن نہیں بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی کو ڈیوائن ردم کے مطابق ترتیب دینا بھی ہے۔ ورگو 2026 جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسا سال رہنے والا ہے جو اندرونی صفائی، ہیلنگ اور نئے نظم و ضبط کی بنیاد رکھے گا۔ اگر
पिछले साल आपने दूसरों के लिए सब कुछ मनज़्ज़म किया, तो अब वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने जज्बात और अपनी रूह को तंजीम करें। तो पहला हिस्सा जो है वो खुद एहतसाबी का रहने वाला है और दरमियानी हिस्से में आप प्रैक्टिकल डिसीजन और नई सिमत का आगाज़ करेंगे और आखिरी हिस्से में इमोशनल क्लैरिटी और रूहानी तवाज़न का वक्त रहेगा। ये साल आपसे ये सवाल पूछेगा, क्या आप अपने दिल के साथ इतनी ही सफाई रखते हैं जितनी आप अपने कमरे के साथ रखते हैं? अगर मैं आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करूं तो वर्गो, आप एक एनालिटिकल माइंड रखते हैं, आप केयरिंग हैं और आप बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड शख्सियत के मालिक हैं, मगर अक्सर अपने आप में आप थोड़ी सी अपने ऊपर सख्ती भी करते हैं। 2026 पे ये सख्ती नरमी में बदलने जा रही है। ये साल आपको सिखाएगा कि परफेक्शन हर चीज़ में नहीं, एहसास में होती है। आपके अंदर का हीलर अब जागने वाला है, जो सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि ख़ुद को भी हील करेगा। अगर पिछले साल आप ओवरथिंक करके ख़ुद को थका रहे थे, तो अब सीखेंगे कि खामोशी भी प्रोडक्टिविटी है। लेसन ऑफ द ईयर वर्गो आपके लिए रहने वाला है 2026 में कि ख़ुद को हील करना दूसरों की खिदमत से ज़्यादा मुक़द्दस अमल है। वर्गो 2026 के कीवर्ड्स एंड एनर्जी जो हैं वो रहने वाले हैं हीलिंग, सेल्फ मास्टरी, बैलेंस, इमोशनल विजडम एंड पर्पस एंड डिवाइन ऑर्डर। तो अगर मैं हीलिंग की बात करूं तो पुराने ज़ख्मों से आपने अपने आप को आज़ादी दिलानी है, रूह की नरमी का ये साल रहने वाला है। अगर सेल्फ मास्टरी की मैं बात करूं तो ख़ुद पर काबू पाना है, अंदरूनी नज़म सीखने का ये बेहतरीन वक्त रहने वाला है। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो ज़िंदगी के हर पहलू में सुकून और एतदाल की तलाश रहने वाली है आपको। इमोशनल विजडम की मैं बात करूं तो एहसासात को समझकर शऊर में बदलने की सलाहियत बढ़ेगी इस साल आप में। अगर मैं पर्पस की बात करूं तो अपना मकसद हयात की पहचान और खिदमत को अबादत समझने का जज्बा जो है वो आपके अंदर इस साल डेवलप होगा। अगर मैं डिवाइन ऑर्डर की बात करूं तो आप ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बल्कि अपनी रूह को भी डिवाइन के साथ जो है वो उसकी अलाइनमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे दिल और दिमाग का खूबसूरत मिलाप। 2026 जो है वो आपके लिए डिसिप्लिन जो है वो उसको इबादत में कन्वर्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और ये आपको सिखाएगा कि आपकी इंट्यूशन और प्रैक्टिकलिटी जो है वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। अगर मैं पावर मंथ्स और टर्निंग पॉइंट्स की बात करूं वर्गो तो 2026 मार्च में सेल्फ रियलाइजेशन और हीलिंग ब्रेक थ्रूज़ का वक्त रहेगा। आप अपने अंदर के खौफ या गिल्ट से आज़ाद होना शुरू करेंगे। किसी पुराने इमोशनल पैटर्न को छोड़ने का फ़ैसला आपके लिए नए दरवाज़ों को खोलेगा। अगर मैं जून की बात करूं तो प्रोफेशनल क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप अपनी डायरेक्शन या स्किल्स पर फोकस थे तो अब डेस्टिनी आपको अगला कदम दिखाएगी। करियर में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और किसी नए मौके की खुशबू करीब आएगी। और अगर मैं सितंबर की बात करूं तो आपकी इनर पावर आपके कॉन्फिडेंस को और बेहतर बनाने जाएंगे। दिलो, दिमाग और अमल तीनों एक लड़ी में जुड़ जाएंगे। ये महीना आपके लिए डिवाइन अलाइनमेंट का एहसास लाएगा। ऐसा लगता है जैसे कायनात आपके साथ है, सॉफ्टली गाइडिंग यू टूवर्ड्स पीस। दिसंबर जो है वो ईयर एंड रिफ्लेक्शन का रहने वाला है। ये महीना जो है कंप्लीशन और ग्रैटिट्यूड और इमोशनल क्लोजर के लिए बेहतरीन वक्त रहेगा। कोई पुरानी परेशानी ख़त्म हो सकती है और एक नया सोलफुल साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। अगर मैं आपके रिलेशनशिप और फैमिली की बात करूं तो फर्स्ट फेज़ जो है वो जनवरी टू अप्रैल जो है आप महसूस करेंगे कि आप इमोशनली अपने आप में क्लैरिटी जो है वो बिल्डअप हो रही है। कुछ रिश्ते आपसे ज़्यादा एनर्जी जो हैं वो ले रहे हैं। बाउंड्रीज कायम करना इस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस वक्त और इस साल आपने नो कहना जो है वो सीखना है। और अगर मैं मिडल फेज़ की बात करूं तो मई टू अगस्त रहने वाला है। फैमिली हीलिंग का ये वक्त रहेगा। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। सिंगल वर्गोस जो हैं उनके लिए केयरिंग और मैच्योर कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। ऐसा शख्स जो आपकी जहानत के साथ आपकी नरमी को भी समझे। फाइनल फेज़ जो है वो सितंबर टू दिसंबर है। मैरिड जो वर्गोस हैं उनके लिए अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस टाइम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इमोशनली डिस्टेंट पार्टनर के साथ सॉफ्ट कम्युनिकेशन से दिलों की कुर्बत जो है बहाल हो सकती है। अगर मैं करियर और जॉब की बात करूं वर्गो तो 2026 का फर्स्ट फेज़ जो है जनवरी टू अप्रैल जो है वो सेल्फ एवेल्यूएशन का वक्त रहेगा। आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करने या नए फील्ड एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हैं। परफेक्शनिज्म से निकलकर टीम वर्क की तरफ कदम बढ़ाने का वक्त है। मिडल फेज़ जो है वो मई टू अगस्त का रहेगा, जो जॉब चेंज या प्रमोशन के वाज़ेह इशारे दे रहा है। जो लोग हेल्थ, टीचिंग
एनालिसिस, राइटिंग और हीलिंग प्रोफेशन में हैं उनके लिए रिकग्निशन और सेटिस्फेक्शन दोनों मुमकिन हैं। फाइनल फेज़ की अगर मैं बात करूं तो ये सितंबर टू दिसंबर रहेगा, लीडरशिप के मौके, मगर इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। आपका प्रैक्टिकल विजडम जो है वो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बनेगा। एडवाइस इस फेज़ में रहने वाली है, जो काम दिल से करो वो इबादत बन जाता है, चाहे दफ्तर में हो या किसी हीलिंग रूम में। अब देखते हैं आपके फाइनेंसिस और वेल्थ को, जो कि वर्गो 2026 के फर्स्ट फेज़ में, जो कि जनवरी टू अप्रैल में आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पर तवज्जो देने का ये वक्त रहने वाला है, और इम्पल्सिव स्पेंडिंग और इमोशनल परचेजेस जो हैं आपने इनसे बचना है। मिडिल फेज़ जो है वो मई और अगस्त का रहेगा, जो कि साइड बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग के मौके आपके सामने ले आएगा। स्मॉल और कांस्टेंट सेविंग आपको बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे इस टाइम के लिए। अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूं, जो कि सितंबर टू दिसंबर है, तो प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस के हवाले से खुशखबरी के भी इम्कानात हैं। अगर किसी पुरानी माली मसले में आप फंसे हुए थे तो उसका भी हल मिल सकता है इस टाइम में। अगर मैं हेल्थ और वेलनेस की बात करूं, वर्गो 2026 का फर्स्ट हाफ जो है जनवरी टू अप्रैल, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के असरात जो हैं वो ज़ाहिर हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ख़ास तवज्जो मांगेगा, हैवी फूड से आपने परहेज़ करना है। मिडिल फेज़ जो है वो मई और अगस्त का है, और हार्मोनल बैलेंस और स्लीप पैटर्न्स जो हैं और गट हेल्थ पे आपने फोकस करना है। हर्बल टीज़ एंड प्रोबायोटिक्स एंड मेडिटेशन आपके हीलिंग टूल्स रहेंगे इस टाइम के लिए। अगर मैं फाइनल फेज़ की बात करूँ, जो कि सितंबर टू दिसंबर है, तो वर्गोज़ आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी। कुछ वर्गोज़ की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी जाएंगी। फिटनेस, मोटिवेशन और डाइट डिसिप्लिन के साथ अच्छे रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं। अगर मैं ट्रैवल और एडवेंचर की बात करूं वर्गो 2026 में, तो आपको नए मकामात, नए तजर्बात और इनर एक्सप्लोरेशन के मौके जो हैं वो फ्राहम करेगा। ज़मीन से जुड़े होने की वजह से वर्गो आप अपनी जर्नी में प्लानिंग, प्रेपरेशन एंड पर्पसफुल एक्सप्लोरेशन को तरजीह देंगे। बेस्ट ट्रैवल मंथ्स जो रहने वाले हैं वो मार्च सेल्फ डिस्कवरी ट्रिप्स रहेंगे, छोटे रिट्रीट्स सोच सकते हैं, सोलो ट्रिप्स जो आपकी इमोशनल हीलिंग में आपको काफ़ी हेल्प देंगे। और जून में आप करेंगे प्रोफेशनल रिलेटेड ट्रैवल्स और वर्कशॉप्स, सेमिनार्स जैसे शॉर्ट स्टडी ट्रिप्स भी आप ले सकते हैं। सितंबर जो है उसमें नेचर वॉक्स कर सकते हैं आप, सोलफुल जर्नी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स या मेडिटेशन रिट्रीट्स भी आप कर सकते हो। दिसंबर जो कि रिफ्लेक्शन ट्रैवल्स एंड शॉर्ट गेटअवेज एंड फैमिली विजिट्स और ग्रैटिट्यूड या इमोशनल ट्रिप्स जो हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो सपोर्ट भी देंगे और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहेंगे। अब बात करते हैं कॉस्मिक एडवाइस की। 2026 में सफ़र आपको ये सिखाएगा कि फ़िज़िकल एक्सप्लोरेशन आपकी सोल के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। जहां आपका दिल खुश होगा वहीं आपकी रियलिटी भी रोशन होगी। वर्गो अब बात करते हैं आपके एजुकेशन एंड लर्निंग की। 2026 में फर्स्ट फेज़ में, जो कि जनवरी टू अप्रैल है, ये महीना बुनियादी स्किल्स या नॉलेज को जो है कंसोलिडेट करने का वक्त है। आपने पिछले साल जो भी सीखा या ऑब्ज़र्व किया, अब उसे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। स्टडी हैबिट्स को मजबूत कीजिएगा और अपने आइडियाज़ को स्ट्रक्चर में डालें। मिडिल फेज़ जो है वो मई टू अगस्त का रहने वाला है। न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी। फॉर्मल एजुकेशन हो चाहे या ऑनलाइन कोर्सेज हों या वर्कशॉप्स हों या स्पिरिचुअल स्टडीज़ हों। वर्गो आप अपने कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो प्रैक्टिकल लर्निंग और स्किल एनहांसमेंट पर आपने इस साल फोकस करना है। क्यूरियोसिटी आपको नई सिमत दिखाएंगी और सेल्फ डिसिप्लिन आपकी लर्निंग को फ्रूटफुल बनाएगा। फाइनल फेज़ सितंबर टू दिसंबर रहने वाला है। ये वक्त है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, असाइनमेंट का। जो भी नया सीखा है उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा और एवेल्यूएट भी कीजिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव चेंज लाएगा। क्रिएटिव लर्निंग या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अहमियत जो है वो इस साल बढ़ेगी। लर्निंग ट्रिप्स जो हैं 2026 में सिर्फ किताबों में नहीं, अपने तजर्बात, ऑब्जर्वेशन और इनर गाइडेंस से भी आपने सीखना है इस साल। वर्गो 2026 आपको दिखाएगा कि विजडम सिर्फ एक्यूमुलेशन नहीं बल्कि एप्लीकेशन भी है, और हर लेसन या हर सबक जो है वो आपको आपके दिमाग, दिल और रूह को अलाइन करता है। लकी क्रिस्टल्स जो हैं वर्गो 2026 में रहने वाले हैं एमरल्ड, ग्रीन टूरमलिन एंड मालाकाइट,
اور آپ ان کو اپنی لٹل فنگر میں ان کو پہن سکتے ہیں، ایز اے پینڈنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، ایز اے بریسلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں. میٹل بہترین رہے گا، سلور. اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے اسپرچول اینڈ پرسنل گروتھ کو. ورگو 2026 آپ کے لیے انورڈ ریفلیکشن کا سال ہے. آپ اپنے جو ہیلنگ گفٹس ہیں آپ ان کو اس سال پہچانیں گے. وہ انٹیوشن جو ہمیشہ درست رہتی ہے، میڈیٹیشن، جرنلنگ، مارننگ واکس آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گی. ہر صبح گریٹیٹیوڈ کے 3 پوائنٹس لکھیں. ہر شام کو اپنے دل کو معاف کیجئے. ایئرلی ایڈوائز آپ کے لیے رہنے والی ہے، اپنے ریلیشن شپ کو آپ نے باؤنڈریز کے ساتھ محبت کرنا سکھانا ہے. کیریئر میں آپ نے پرفیکشن نہیں، پروگریس پہ فوکس کرنا ہے. فائنینسز میں پلاننگ اور گریٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے فیصلے لینے ہیں. اور اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو ریسٹ اینڈ گٹ ہیلنگ اینڈ جینٹل موومنٹ پہ فوکس کرنا ہے. اسپرچویلٹی میں سیلف ریفلیکشن اینڈ انٹروسپیکشن جو ہیں وہ اس سال بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. آخر میں ورگوں میں اتنا ہی کہوں گی کہ 2026 آپ کے لیے ہیلنگ الائنمنٹ کا سال ہے. یہ وقت ہے خود کو دوسروں کے معیار سے نہیں، اپنی روح سے جانچنے کا، جہاں خاموشی عبادت بن جاتی ہے اور نظم و ضبط جو ہے وہ عبادت. ورگو آپ کی اصل طاقت آپ کے سکون میں ہے. یہ سال آپ کو دکھائے گا کہ ہیلنگ تب شروع ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ سے نرمی برتتے ہیں. میری دعا ہے کہ آنے والا سال جو ہے 2026 آپ کے لیے محبت، خوشیاں اور کامیابیاں لے کے آئے، آپ کے دل میں نئی امیدیں جگائے اور ہر دن آپ اس امید کے ساتھ ایک نیا آغاز کرو اور ایک نیا پراسپیرٹی کا لیول جو ہے انہینس کرو. خوش رہیں، سلامت رہیں.